Tell Rahul to be around if he wants to check. फिर बाद में बोलेगा नहीं पसीना था आपने बुलाया नहीं. देख धीरे धीरे करो और जल्दी करो, दोनों का बीच में आओ. हाँ. और कितनी भी कोशिश करोगे हम ऐसे ही देखेंगे, करीना कपूर नहीं लगेगी. Ladies and gentlemen, boys and girls, Amal Malik for you. बता दे क्या जादू तूने मुझ पे कर दिया. Bro, actually, we first met in 2013-2012 Taj Lands End और अरमान था वहाँ पे. अरमान was really small. Arman is still really small. Arman is still really small. And it was for Hero, yes. the song. Yes. And I remember meeting Amal and we hit it off like, you know, हम पहली बार मिले थे और ऐसा लगा कि यार कि कुछ लोगों के साथ आपका कनेक्शन बैठ जाता है कि यार यू नो दिस पर्सन फॉर मेनी इयर्स, जन्मों जन्मों का साथ है टाइप. यू नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ? आई एम गोइंग टू गिव वन ऑफ योर फैंस बिकॉज़ ऑल ऑफ देम आर सो ऑस्ट्रक एंड दे लव यू सो मच. इतना रुके हैं सारे फैंस. सो एक सवाल आपसे आपके फैंस पूछेंगे. हु वांट्स टू आस्क दिस क्वेश्चन? यार पूछना शादी का करो, टाइम नहीं. Your most favorite composition and song which is very close to your heart till date? My own Your song. personal. It's always going to be मैं रहूँ या ना रहूँ. And यानी I believe कि मैं रहूँ या ना रहूँ वो गाना हमेशा रहेगा. So I think it's मैं रहूँ या ना रहूँ. Everybody's seeing the Amal Malik right now, the success. इतना कुछ आपने achieve कर लिया है. You've done more than 120 songs, 115 songs in the last 10 years. By the way, he's also won an award. Yeah. And उस award के लिए भाई तालियां बनती है भाई. Of this decade, our boy has slayed it. Oh yes. Of this decade. So I think ऊपर हो गए लग रहा है. बड़े हो गए हैं. अपन बुढ़े हो गए. इस रेडियो स्टेशन पे आते इंटरव्यू करते दोनों के वाइट बाल आ चुके हैं. हम सिर्फ छुपाने में We are good at this. We are good at this stuff. It's been 10 years, man. How has it changed? 2013 you started or before that only? उसके पहले ही start किया था यार. I think music तो started for both Arman and I. मैं 8 साल का था when I started playing the piano. Like then you were बाल कलाकार, now you are बाल कलाकार. You've seen us also at a point where we've gotten into the scene. Right. Obviously we were not. I miss the fact that हम लोग पहले दोस्त होते थे यानी और पता नहीं और कितनी गहरी दोस्ती होती. Because Glenn has almost seen all the 10 years with me. With every release, almost every release में इधर आया हूँ, गाने गाए. But this all started back somewhere in 2012. 2012 में पहली बार दोनों भाइयों ने सोचा कि एक एल्बम करते साथ में. जब वो गाएगा मैं कंपोज करूँगा, प्रोड्यूस करूँगा. And we did that album with Universal. Yeah. Sajid Maklai had just come in and he chose us along with Devraj Sanyal. So they were the first people who believed that indie pop is going to come up, you know. And back in 2012. Back in 2012, they believed in two young boys, and that's why I say Universal is one of the first few labels to bring back, indie pop. The OG style. Yeah. Okay, obviously the legends have already done it, Sonu Sir, Shan and all. But कहीं ना कहीं film music, as always, will take over. But एक आर्टिस्ट की दिल की आवाज़ हमने कोशिश की कि 2012 में we made an album which took 2 years. Right. Released in 2014. It was titled Arman. And उस एल्बम के 2 गाने थे जो सलमान खान सर को पसंद आए. Love You Till the End and तुमको तो आ रही था, which became part of Jai Ho. One of my biggest moments in life where I was debuting in such a film. Right. गाने मैंने कोशिश की बेस्ट बनाने पर सुपर हिट हुए नहीं. But उसके लिए भी एक अच्छी, it was meant to be on a later date. And I started analyzing music once I debuted. उससे पहले नहीं तो I'm playing classical music, learning a little jazz, blues, pop. Film music और Indian music की समझ तब आई जब पहली पिक्चर का म्यूजिक मेरा नहीं चला. And that's what helped me carve a better journey, But honestly, when you're in the music industry, sorry to cut you, but when you go through this lull phase, like आपने कहा कि something didn't work when you started off only. तो यार immediately वो एक हो जाता ना कि यार चल गिव अप कर देते हैं या कुछ और ट्राई कर लेते हैं. हाँ नहीं, मेरे को तो बहुत कोशिश की, बहुत लोगों ने गिव अप करवा नहीं. But I'm standing and sitting actually right here. So but you've always stood your ground, buddy. You've always stood your ground. You've always done what you felt is right. I think one thing I'll tell you दिल से, I am very emotional and I feel कि जो दिल में वो बोल देना चाहिए. तो मैंने तभी भी बोल दिया था जब मैं बेबी था. I was around 23. I did जय हो चली नहीं. पिक्चर भी एक लेवल था, यानी बहुत पैसे कमा के नहीं चली, कंट्रोवर्सी में आ गई थी, गाने नहीं चले. ऑब्वियसली बहुत अच्छे बेटर गाने थे उस फिल्म में बाय साजिद वाजिद, तेरे नैना, दैट सॉन्ग. सो मुझे रियलाइज हुआ, आई एम ट्राइंग टू कट इट शॉर्ट बट थोड़ा बोलने दो,
कि you know मुझे तब रियलाइज हुआ कि I was little ahead. You know people like us, we were listening to Swedish House Mafia, Avicii and all, but Bollywood mass listeners were only listening to Hindi music. Right. And Salman sir की image के साथ they either understand Dinka Chika, character ढीला, नहीं तो तेरी मेरी प्रेम कहानी. Right. That's the two dimensions of his style. Right. या तो एक फुल गणपति जैसा यहाँ भी होगा, वो समझते थे, और मैंने कर लिया EDM और फुल इंग्लिश लिरिक्स के साथ, which he loved, but people could not connect with him with that कि ये म्यूजिक सलमान खान का म्यूजिक नहीं है. गाने शायद ठीक ठाक थे, but that had to happen, and there were, you know, people, I remember people come to my house after the announcement came, Salman Khan launching this guy, and suddenly उसके बाद there were people with you know, they came literally with bags of money to sign me for some new film. You know कि 10 लाख रुपए एडवांस ले लो, ये ले लो, मतलब भाई काम तो एक टीन ये नहीं किया मैंने अब तक, आप पैसे क्यों दे रहे हो? नहीं आप तो आ गए अभी इंडस्ट्री में, छा जाओगे. लिटरली वो बैग्स छोड़ के चले गए, और मैंने मेरी मम्मी को बोला सर गेट पे रख देना, बोल देना हमें नहीं चाहिए, हम म्यूजिक इसके लिए नहीं कर रहे. और मेरे को पता है कि ये जो मैंने बिफोर द रिलीज आई रियलाइज कि मेरा म्यूजिक नहीं चलने वाला है, क्योंकि बाय देन आई मेड एन एनालिसिस दैट द म्यूजिक आई एम डूइंग इज 2 years अहेड ऑफ इट्स टाइम. राइट. बॉलीवुड इज 2 years बिहाइंड. मैंने बहुत जल्दी EDM कर दिया, ये तो गई भैंस गई पानी में. तो मैंने बोला था कि पैसे नहीं खर्चना भाई, ये रख लेना साइड पे, we'll have to owe them back, and literally that happened. The film came, the album failed, they came back within the next week or something कि भाई आपके साथ काम नहीं करना. मतलब मैं तो पता था, मतलब ले जाओ. तो literally that happened, and 1 year of me going back to asking my music directors जिनको मैं assist करता था, कि मेरा कुछ नहीं हो रहा है, आप वापस assistant ही रख लो. और वहाँ नए लोग आ गए थे. सलीम सुलेमान was still kind enough, we were doing 1-2 things together, so they always said we're there for you. बट बाकी बहुत लोग जिनको मैं असिस्ट करता था, उन्होंने लिटरली फोन ही उठाना छोड़ दिया, मिले भी नहीं, मैं रिप्लेस भी हो गया. एड्स में वापस जाने की कोशिश की तो 20-30 हज़ार के भी बजट नहीं मिल रहे थे एक जिंगल के. तो लिटरली वो पॉइंट वी रीच्ड, एटलीस्ट आई रीच्ड, बिकॉज आई वाज द कंपोजर. सूरज डूबा वाज अबाउट टू रिलीज, एंड आई हैव लिटरली बेग्ड भूषण जी कि मेरा पहले मत रिलीज करो. मैं बहुत छोटा आदमी हूँ सर, मैं डेब्यू मलिक हूँ, मेरा अभी रिलीज मत करो. एंड एट दैट टाइम अंकित तिवारी and Meet Brothers had done stupendously well कि गलियां सुन रहा है तू, right, you know, that was a banger songs man. And Baby Doll had come. So एल्बम में जब 2 सीनियर्स थे तो मैंने बोला सर इनका रिलीज कर दो, मेरा सुमड़ी में कुमड़ी कर दो, डाल दो 3rd नंबर, बच जाऊंगा मैं भी, फ्लाइंग कलर्स आ जाएंगे. बट ही सेड देखो तुम बच्चे हो, जो उस टाइम पे था, अभी भी दिल से हूँ. He said मेरी लेबल है, मेरा प्रोडक्शन है, मुझे मत सिखाओ, मैं 20 साल से म्यूजिक करता हूं. ओके भूषण जी, मुझे पर अगर I told him very sweetly, I said सर एक चीज आपको बोलना चाहता हूँ, इतने साल से म्यूजिक ट्राई कर रहा हूँ, ऐसा लगता है कि अब तक मैंने म्यूजिक को तो चुना है, पर म्यूजिक मुझे नहीं चुन रहा. यू नो इट्स लाइक द आर्ट फॉर्म इज नॉट चूजिंग मी, यू नो कि तू आ जा, यू आर अ म्यूजिशियन. कुछ चल रहा ही नहीं है. I said अगर ये चलता है ना सर, ऐसे तो मैं मानूंगा कि म्यूजिक ने मुझे चुना है. नहीं चलता है तो आई हैड ऑलरेडी स्टार्टेड स्टडीइंग M.Com, अप्लाइंग फॉर अ यूनिवर्सिटी इन न्यूजीलैंड. बोल दिया था मासी को कि इन लोग बहुत अलाप शनाप लिख रहे हैं, मैं आके बर्गर बेचूंगा, पर म्यूजिक नहीं करूंगा. You actually, dude, I don't know this part of the story. This is true. I called my मासी who stays in New Zealand. Maybe I've said it to आते जाते, but not clearly, कि मैं आ जाऊँ उधर, पेट्रोल स्टेशन पे काम करें, बर्गर बेचें, पर ये म्यूजिक का मन नहीं करना मुझे. And somehow this song came. And I had put everything on this song. यानी ये चलेगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा म्यूजिक. Literally यार 2015 no 2014 के एंड में 19 December 2014 is when सूरज डूबा released. एंड इधर भी एक स्ट्रगल, अगले दिन पता चलता कि मोनो मास्टर रिलीज हुआ, मतलब साउंड एक ही लेफ्ट स्पीकर में लग गई, फिर से गई बात. So we'll be talking more about your and my candid moments, but I think they're waiting for a track. One track that you want to perform right now for your fans, if you had to dedicate something to them, वो कौन सा होगा? This is one of my most loved independent songs. Go for it. And with the Queen Shreya Ghoshal, so you know which one I'm talking about. Hey. तो प्यार दो तरफा दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? दिख रहा है ना? Come on guys. All right, let's go. आज थोड़े मालियंस संडे मूड में है मेरे को. I know. अभी कल ही तो मिली थी ख्वाबों के मोड़ पर, वो भीगा था रात भर में, बरसी थी रात भर, वो जादू है एक
ऐसा जो मैं ही जानता. Arman and you have collaborated on something very cool. Yes. Tell us a little bit about this. हम लोग दोनों में था कि he was trying very hard, he was touring. Yeah. एक पोस्ट भी डाला recently, for him कि अंदर से या आंखों से I could read कि इसे बैठ के म्यूजिक बनाना है, पर दुनिया हजारों तरफ खींच रही थी अरमान को. And I would say both of us didn't get that brotherly time to jam and create music. तो मैं गाने बनाते रहता हूँ, वो कभी-कभी बनाता है. Then we met last year. We went to Lonavala and we were chilling, और तभी 5-6 दिन मैंने बोला अभी तू मेरा है किडनैप. एंड हम लोग बैठे जैम किया एंड देन है मौसमों की अदाओं में तू हैपेंड. एंड आई वाज लाइक व्हाट इफ वी रिलीज दिस एज अ सिंगल. Never tell anybody that an album is coming and Sun Mahi is part of that album. So आज आप जब देखते हो Only Just Begun has Sun Mahi, has Kasam Se, which you've already heard. Yeah. So it was a longer plan and हम लोग को चिल करना पसंद है हमारे फैंस के साथ कभी. So that was the plan to make an album that has 7, 8, 9 how many ever songs. Okay. And it should feel like a mini concert when you hear it. कि हर zone का है. We've curated proper Indian pop. यानी उसने इंग्लिश म्यूजिक में जो साउंडस्केप किया था इन हिज यू एंड कंट्रोल एंड हाउ मेनी. सो आई सेड व्हाट वी आर डूइंग देयर, लेट्स ब्रिंग दैट विद हिंदी लिरिक्स एंड गिव पीपल दैट काइंड ऑफ रेंज व्हिच दे आर नेवर यूज्ड टू ऑफ अरमान मलिक. कि अरमान मलिक डांस ट्रैक रियली, वो तो दर्द वाले गाने नहीं. इस बार अरमान मलिक पॉप स्टार है, रॉक स्टार है, हार्ट ब्रेक स्टार है, सब बनेगा वो साल. We want to know the inside stuff. दो क्रिएटिव लोग साथ में आते हैं, अरमान एंड अमाल. अमाल lives his heart on his sleeve. अरमान is a little more poised. अरमान is a little more सोच समझ के बोलेगा नहीं, बहुत ठहराव के साथ. अमाल is like me है, जो हो गया दिल में बोल देगा. यार वो क्लैश के बारे में बताओ तो लड़ाई कैसे होती है, ये गॉसिप हमको जानना है. आज सुबह एक वीडियो अरमान ने बॉम्ब फोड़ दिया है. He was गिविंग सम इंटरव्यू एंड उसमें उसने बोल दिया, मैंने स्टोरी पे डाला है कि चले आना की रिकॉर्डिंग में कैसे आई ऑलमोस्ट स्पोक बैडली टू हिम थ्रू अ बुक फ्रॉम द म्यूजिक कंपोजर रूम टू द सिंगर ग्लास. ऐसे गाना नहीं आता तेरे को बेवकूफ, ऐसे सब पे पहुंच गया. लिटरली साथ में लव रंजन जी बैठे जो बहुत ही शांत स्वभाव के ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग. यानी ही टोल्ड मी आफ्टर दैट टॉक बैक बन गया, भाई मैं नहीं देख पाऊंगा. बोले मेरी पिक्चर का नाम दे दे प्यार दे, ये तो नफरत हो गई. तुम गाना करके भेज दो, तुम लोग ये लड़ाई में मेरा दिन यानी मैं पागल हो जाऊंगा, क्या कर रहे हो तुम लोग. बट भाई बाबा वी आर टॉकिंग अबाउट लव, प्यार, इश्क, मोहब्बत. सबकी लाइफ में कभी ना कभी एक ऐसा ब्रेकअप हुआ है दर्दनाक ब्रेकअप. मतलब आपकी नाक बड़ी चल रही है यहाँ पे. आपके नाक का दर्द निकाल. दर्दनाक. इट्स बीन अ पेनफुल ब्रेकअप. Yes. तो वो वाला सीन भाई आपके साथ भी हुआ होगा कभी ना कभी. हाँ मेरा तो रोज होता है. But जब से वो हुआ वैसा नहीं हुआ. That वो वाला ब्रेकअप इज द मोस्ट. वो वाला ब्रेकअप रोके ना रोके नैना बना था उस ब्रेकअप. और फिर जब उसकी शादी हो गई तब तेरे मेरे बना था. सच है. Some girl, नाम नहीं लेंगे, लिख नहीं सकते. But I really used to like her. We grew up together. And things didn't work out due to whatsoever reasons. मेरी जिस दिन बुक या बायोपिक बनेगी तब प्यार से बता देंगे सब. But sometimes it doesn't work out, and she didn't, like, we both didn't fall out of love. Circumstances made her go away in life, and my journey as a musician made me go away. You've seen La La Land? देखिए आपने? Somewhat like that. It just happened to be कि we were young, very young. You know, we started meeting and being friends at the age of 17, 18. डेटिंग, गेटिंग टू नो ईच अदर, प्योरली डेटिंग, नॉट इवन इन अ स्पेस की जैसे वो गाने में मैंने बोला है कि उसको छुए बिना भी उसके गले लगा. देयर वाज नो फिजिकलिटी इन्वॉल्वड फॉर ऑलमोस्ट 2 years. लाइक आई कुड इवन किस हर ईयर. ऐसा था मैं. सो इट वाज सो प्योर दैट व्हेन इट वेंट डिफरेंट वेज इट जस्ट बिकेम लाइक, यानी ये कोई बहुत बड़े रीजन के लिए हुआ जो ऐसा नहीं होता किसी के साथ इतनी जल्दी. एंड द रीजन वाज दैट आई हैड टू बिकम अमल मलिक. सो समवॉट दैट लव स्टोरी, दैट जर्नी मेड मी. You get candid stories only here on Chill Mornings with the most chill Fadu Jugadu in this country. Only if you are interviewing. मेरा सवाल ये है, you still continue living your heart on your sleeve and you still continue speaking your mind. Yeah. I don't know how to, like, maybe the conversation and the language has become less
controversial. Less Mawali and controversial, less Mumbai on the internet. Because after the day, A.R. Rahman sir ने मेरा एक गाना शेयर किया, तुम आओगे, from Bell Bottom. बहुत ही, and मैंने वो उनको सिर्फ अरमान के थ्रू, अरमान had just finished a recording, ऐसे एक बार से सुना दे, I just want to know what he feels. No, he might not even know of people's existence, such a big composer. And he just took and tweeted saying, great to see that these kind of melodies are alive today. And तब से मेरे को खुद की इज्जत थोड़ी ज़्यादा हो गई. मैंने बोला अब ऐसे सब ये सब जो ये देख लूँगा देखते ऐसे सब ट्वीट्स बंद करने पड़ेंगे. पर वो सब हमें पता है, फैन क्लब्स में भी, हमारे में भी, हर जगह होते हैं. बहुत ऐसे होते हैं जो आर्टिस्ट की आवाज़ नहीं रखते या एक्टर की आवाज़ नहीं रखते, खुद का ही कुछ उनका मूड होता है. मैं तो ऐसे लिखता था, ऐसे लिख ले तेरा फ्री रिचार्ज खत्म हो जाए भर के तो ऐसी बातें करना थोड़ा मैंने छोड़ दिया. बट जो स्टैंड लेता हूँ राइट चीज़ के लिए, whether it's on film awards, whether it's on music awards, whether it's how recently I spoke about कि marketing money is what is making music happen today. So बहुत चीज़ों पे मैंने दिल खोल के मुंह तोड़ जवाब दिए जिसे ने मांगे नहीं होंगे. बट जो नई जनरेशन आ रही है, as listeners, as enthusiasts, as creators, as musicians, जो इंडस्ट्री में भी आना चाहते हैं, उन सबको, ऑडियंस को झूठ नहीं बोलते, you know, हम तो नहीं बोलते. अरमान भी अपने तरीके से बोलता है, बट मैं सीधा खुला ये लो. तुम ऐसे गए कि फिर कभी लौट कर आए ना, दिल का क्या करे, दिल तो हमेशा तुम्हें चाहेगा. सोचा था मैं बनूंगा तुम्हारा, मगर ये तो हो ना सका. ज्यादा तो मैंने मांगा नहीं है, अगर हो सके एक दफा मरने से पहले देखे तुम ही. आगे याद नहीं आ रहा मुझे अभी, बट यू कैन हियर इट इज जस्ट रिलीज राइट नाउ. मरने से पहले देखे तुम्ही को, तो सफर पूरा हो जाएगा. मेरे लिए दो आंसू बहा दो, सुकून से चला जाओ. देखो ऐसा है, मुंबई के फाड़ू जुगाड़ू ने यहाँ पर ये जुगाड़ बिठा दिया है, क्योंकि लाइफ इज हार्ड, फॉर दैट देयर इज ऑलवेज अ जुगाड़.